మార్కెటింగ్ మన బిజినెస్ ని సాక్షాత్ టెండూల్కర్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఏషియాలో హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ అన్నారు. ఏషియాలో, ఇండియాలో కాదు. ఇండియాలో చాలా మంది లీడర్స్ ని ప్రిపేర్ చేశారు, చాలా మందిని లైఫ్ మారిచ్చారు. అతను ఎక్కడ వెళ్తేనూ ఇలాగా అందరూ వస్తారు ఎరగడానికి. ఎందుకంటే ఇదివరకు లాస్ట్ 10-12 ఇయర్స్లో 14 to 15 ఇయర్స్లో వెస్టీజ్లో చాలా మందిని లైఫ్ మారిచ్చారు. మన లైఫ్ మారుతుంది. మన లైఫ్ మారుతుందా? మారాలా వద్దా? మనకు కావాలంటే మారుతుంది. అందుకే మీరు సిద్ధార్థ్ గారు నెక్స్ట్ ఏం చెప్తారో అదన్నీ వినవండి. అతని స్టోరీ వినవండి. అతని స్టోరీ చెప్తారు. నేను అతను హిందీలో మాట్లాడతాను, నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు సిద్ధార్థ్ గారిని ఇన్వైట్ చేద్దామా? సిద్ధార్థ్ గారిని ఇన్వైట్ చేద్దామా? సిద్ధార్థ్ గారిని ఇన్వైట్ చేద్దామా? లెట్స్ గివ్ అ వెరీ బిగ్ హ్యాండ్ టు మిస్టర్ సిద్ధార్థ్ సింగ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. అందరూ బాగున్నారా? చాలా సూపరా. శ్రీనివాస్ రియల్ సూపర్ స్టార్. Allu Arjuna, real Arjuna. God bless you. Last time when I met him, his check was 5 lakh rupees, and yesterday Surya bhai told me कि इनका चेक अभी 30 lakh plus क्रॉस कर गया है. ఓకే. సిద్ధార్థ్ గారు ఏమన్నా అంటే లాస్ట్ టైం కలవనప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు శ్రీనివాస్ గారి చెక్ 5 lakhs ఉంది, ఇప్పుడు 14 lakhs అయిపోయింది. अभी ये अल्लू अर्जुन मेरे कान में बोल रहा है इस साल नया कार लेगा 1.5 करोड़ का. मेरे पास भी 1.5 करोड़ रुपए का कार नहीं है. God bless you more and more brother. Thank you so much. And बहुत अच्छा लगता है जब आप में से लोग निकल करके सामने आते हैं. आज that is the beauty of this business. This business makes you a superstar. इतनी सारी श्रीवल्ली यहाँ पे बैठी हुई हैं, इतने सारे अल्लू अर्जुन यहाँ पे बैठे हुए हैं. आप देखिए वो रील है, ये रियल है. वो किसी की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं. ओनली कैन गिव एंटरटेनमेंट फॉर 2 hours or 3 hours. But you people are the real hero or the real heroine. You can create the difference. मुझे कल सुबह भाई ने बताया, एक हमारे भाई हैं जो एमआरतेज आप बोल रहे थे सर, वो जॉब छोड़ के आए 5 लाख रुपीस का. सही कहाँ पर है सर? सही करो. बाहर है. अब देखिए रियल सुपरस्टार जो होते हैं वो बाहर बैक स्टेज काम करते हैं ताकि हम लोग स्टेज पर अपना काम कर सकें. आप लोग हैं, ये लोग हैं, तो हम लोग हैं. एंड इट इज सो वंडरफुल. एंड आज के 1 साल बाद, टुडे वी आर इन 2024, 4th of February ओवर हियर, 2025, 2026. आप में से हर एक पर्सन का जो चेक है should reach minimum to minimum 3 to 5 lakh rupees. And अगर आप अपने आप को डेडिकेट करेंगे, ये प्लेटफॉर्म आपको सब कुछ देने को रेडी है. सवाल ये है क्या आप रेडी है लेने के लिए?
अगर आप रेडी है तो ये बिजनेस आपको सब कुछ देगा, बट 3 years आपने पूरा फोकस सिर्फ अपने सक्सेस पे रखना है। ऑलराइट, ओके। बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे। भाई मेरे ट्रांसलेटर है, ये मेरी సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే మీకు ఏం కావాలో ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి దొరుకుతుంది. ఏం కావాలంటే అది ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి దొరుకుతుంది. మనం ఎప్పుడు చెప్తాము ఏం కావాలో దొరుకుతుంది, ఎంత కావాలో దొరుకుతుంది, ఎవరికి కావాలో దొరుకుతుంది. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ 3 years మీరు పేషెంట్గా ఈ పని చేయాలి, పేషెంట్గా ఈ పనిని నేర్చుకోవాలి. Got it? So there will be distractions. डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. डिस्ट्रैक्शन कहाँ से होंगे? अब इतनी सारी श्रीवल्ली बैठी, इनको अल्लू अर्जुन डिस्ट्रैक्ट करेगा, अल्लू अर्जुन बैठे इनको श्रीवल्ली डिस्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस रखना है सक्सेस के ऊपर, पे आउट के ऊपर. अगर आप सक्सेसफुल हो, एवरीबडी इज विद यू इन दिस लाइफ. If you are not successful, nobody is there. You stand alone. So today you have to make a decision that yes, I want to change my life. I want to become successful. సిద్ధార్థ్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఫోకస్గా పని చేయాలి. ఎందుకంటే మన పని చేయనప్పుడు చాలా డిస్ట్రాక్షన్ వస్తుంది. అది ఆ డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా మనం ఫోకస్గా పని చేయాలి. లైఫ్లో మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయి, మీ దగ్గర అంతా ఉంటే అందరూ మీకు కూడా ఉంటారు. మీ దగ్గర మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేకపోతే మీ దగ్గర ఎవరు ఉంటారు, మీరు ఒకటే ఉంటారు లైఫ్లో. అందుకోసము మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి లైఫ్లో అని చెప్తున్నారు. Got it? Okay. So, first thing today is define what you want to achieve in terms of money. If somebody asks you what is your dream, you should never say I want to earn lot of money. There is no definition of lot of money. Lot of money means what? अगर somebody earning 3,000 rupees, 3,000 रुपया, उसके लिए 10,000 रुपये is lot of money, okay? But somebody earning 50,000 rupees, 10,000 is not lot of money. So you should define yourself. That means what is your immediate goal? What are you focusing on? So I want you to put in your mind what are you focusing on? Means give it in terms of money, give it in terms of figure. ఈరోజు మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు అనుకుంటే నాకు చాలా డబ్బు కావాలి అనుకుంటే ఆ చాలా డబ్బు కాదు. ఎందుకంటే ఒక అతను 3,000 రూపీస్ అర్న్ చేస్తే 10,000 రూపీస్ చాలా డబ్బు. ఒక అతను 50,000 రూపీస్ అర్న్ చేయనప్పుడు 10,000 రూపీస్ చాలా తక్కువ డబ్బు. అందుకోసము మీరు డిసైడ్ చేయాలి మీ బిజినెస్లో మీకు ఎంత డబ్బు కావాలి. 10,000 రూపీస్ కావాలా, 20,000 రూపీస్ కావాలా, 30,000 రూపీస్ కావాలా, మీకు ఏమేమి నెసెసిటీ ఉంది, ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఎంత డబ్బు జాబ్ కావాలి అని చెప్పేసి మీరు ఫిగర్లో వేసుకోవాలి. చాలా డబ్బు కాదు, ఫిగర్ కావాలి. 25,000 రూపీస్, 30,000 రూపీస్, 12,000 రూపీస్, 15,000 రూపీస్ అని చెప్పేసి ఫిగర్లో రావాలి అని చెప్పేసి. Got it? Yes. Good. Okay. What is your amount? Huh? There is nothing called first time. My question is very simple. How much money you want to earn, ma'am? How much amount you want to focus on? There is nothing first time, second time, 10 time, 20 time, 40 times. Good. 1 lakh. Good. Very good. Yeah. Huh? 2 lakh. Very good. Okay. 2 lakh. Okay. 1 lakh. Okay. అందరూ లక్షలు చెప్తున్నారు, థౌసండ్స్లో ఎవరు లేరు. So my advice to you is don't go directly to 1 crore. Go step by step. If suppose मुझे अभी सुबैया जी के पास में जाना है, तो the way is left, right. I reach to सुबैया जी. Okay? So go step by step. So focus first on 10, 20, 30, 40, 50,000 or 1 lakh, right? Go step by step. Once you reach there, then you can upgrade. But go follow the process which your mind can believe. If you will directly take it to 1 CR, your mind won't believe it and you will not be able to achieve it. You understand that? సో సిద్ధార్థ్ గారు ఏం చెప్తారంటే 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh మనకి కావాలి డెఫినెట్లీ. బట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళండి.
అంటే ఎవరు చెప్పారు 1 crore అని చెప్పేసి 1 crore అయితే చాలా హై టార్గెట్. సడన్లీ 1 crore అని అనుకోవద్దండి, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళండి. 1 crore దగ్గర మీరు రీచ్ అవుతారు. అది వెళ్ళటానికి స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి. ओके, सबके माइंड में फिगर आ गया अपना अपना. అందరూ అనుకున్నారా ఎంత డబ్బు కావాలని చెప్పేసి? మన లైఫ్ ని మంచిగా లీడ్ చేయడానికి మనకి ఎంత డబ్బు కావాలని అనుకున్న కదా మీ మైండ్ లో ఆ ఫిగర్ వచ్చింది కదా. Got it? Fine. Now, आज सुबह भाई ने अभी 2 दिन पहले मेरे को बोला कि मैं अपना जर्नी के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगा. टुडे यू नो मी एज टॉप अर्नर और समथिंग, बट मेरा भी शुरुआत बहुत हम्बल था. मेरा भी पहला पेचेक इस इंडस्ट्री से 155 था. सो मैं कम समय में, मुझे पता है आप लोग नीचे भी बैठे. ओके, अब देखिए मेरे डायरेक्टर, ये मेरा डायरेक्टर है. तो मेरा डायरेक्टर मुझे कह रहा मेरे पास एक ही घंटा है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जो भी बेस्ट दे सकता हूँ वो दे दूँ. आप रेडी है? ओके, गुड. सो आई शेयर माई जर्नी विद यू इन दिस वट एवर लिटिल टाइम आई हैव विद मी. सबसे पहली चीज़ मैं आज व्हाट टफ पीपल डू. जो कठिन समय है, मुश्किल समय है लाइफ में, वो हमेशा नहीं रहता, बट जो लोग रियली टफ होते हैं दे प्रोलॉन्ग इट. ओके, देयर इज नॉट इवन वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड आई नो जिसने अपनी लाइफ में टफ समय ना देखा हो. जो जितना सक्सेसफुल है उसने उतना टफ टाइम देखा है, बट बिकॉज दे वर टफ इसलिए दे कैरिड ऑन, दे इवेंचुअली बिकेम सक्सेसफुल. ऑर्डिनरी लोग टफ टाइम से या मुश्किल टाइम से टूट जाते हैं या वो गिव अप कर देते हैं, एंड दैट इज द रीज़न व्हाई दे आर ऑर्डिनरी. सो टुडे यू हैव टू डिसाइड दैट कम व्हाटएवर में, कुछ भी हो जाए, मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा. आई विल अचीव माई 1 lakh, आई विल अचीव माई 2 lakh, आई विल अचीव व्हाटएवर आई एम देयर टू अचीव. जी इसको कुछ बोलना चाहेंगे? సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే జీవనాలు అందరికీ ఒక కష్టది ఒక సమయంలో వస్తుంది. ఆ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ అని చెప్తారు కదా, ఆ టైంలో మనం అది ఎలాగైనా చూసి అది కంటిన్యూస్గా చూసుకొని అది కూడా పని చేసుకొని ముందు వస్తే ఆ కష్టం టైము వెళ్ళిపోతుంది. అందుకోసం ఈరోజు ఎంతమంది లీడర్ ఉన్నారో అందరికీ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ వచ్చింది, బట్ ఎవరు ఆ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ వచ్చింది ఊరినే కూర్చోలేదు, పని చేశారు. మీరు పని చేస్తే ఆ కష్టం టైము వెళ్ళిపోతుంది. गुड. सो मैं जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा. मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूँ. सुबैया मेरे को मेरा और सुबैया भाई का बहुत पुराना रिलेशनशिप है. वी आर फ्रेंड्स नाउ फॉर मोर देन 26-27 ईयर्स. सो मैं पॉलिटिकली करेक्ट कभी बात नहीं करता हूँ. मैं जो हमेशा सही होता है वही बोलता हूँ, और आज भी मैं सही जो भी बोलूँगा आपको यहाँ से बोलूँगा, बिकॉज आप लोग इतनी दूर से आए हैं. मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आज आपको सक्सेस की राह दिखाऊं एंड आपको इंस्पायर करूं आगे बढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానో అది సత్యమే చెప్తాను, ఎందుకంటే హార్ట్ నుంచి చెప్తాను. నేను పొలిటికల్లీ కరెక్ట్ అలాగేం కాదు. నేను ఏం జరుగుతుందో, ఏం ముందు మార్గదర్శనం ఇవ్వాలో అది సత్యంగా నేను చూపిస్తాను. ఎందుకంటే మీరు చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు. నేను మీ సక్సెస్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేయటము చాలా ఇంపార్టెంట్. सबसे पहली चीज़ बुद्धा की जो फर्स्ट फिलॉसफी है, इट सेज लाइफ इज सफरिंग. मैं सफरिंग नहीं बोलता हूँ, लेकिन आई बिलीव लाइफ इज टफ, लाइफ इज नेवर इजी. इसीलिए आप देखिए जब किसी की डेथ हो जाती है तो वी राइट RIP, मीन्स रेस्ट इन पीस. मतलब अब सुबह उठ के क्या बनाना है, क्या खाना बनाएगा, क्या खाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आप आराम से सो सकते हैं. बट जब तक लाइफ है, चैलेंज हमेशा थे, हैं और रहेंगे. एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसका जो गर्दन है, नेक भी सीधा नहीं रह सकता है. 4 महीना लगता है, उसके बाद वो बोल नहीं सकता है. ठीक है. अब इफ अ बेबी क्राइज, इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर अ मदर टू फीड हिम विद मिल्क. बट हो सकता है वो कह रहा हो कि मुझे भूख नहीं लगी है, मेरा डायपर चेंज कर दो, मेरे सुसु में सारा कीड़ा हो गया है. बट वो बोल नहीं सकता है. ये उसका चैलेंज है. बोलने में 2-3 साल लग जाते हैं, फिर चलना नहीं आता है. ठीक है. उसके बाद फिर स्कूल में डाल देते हैं. सबसे छोटे बच्चे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सुबह जल्दी उठना, तैयार होना, स्कूल जाना. अब बेचारा जितना उसका वेट नहीं है, उससे ज़्यादा वेट तो उसके बैग का वेट है यार, है कि नहीं है? है ना. वो जाए, वो होमवर्क करो, ये करो, छोटा ABCD, बड़ा ABCD.
अंग्रेज लोग बहुत नाइंसाफी करके गए हमारे साथ यार। एक ABCD तो आती नहीं, आदमी को दो कहाँ से आती है, ये समझिए। मैं कर रहा हूँ, जब आप रोक देना मेरे को, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने B कभी उल्टा ना बनाया हो, P या D उल्टा ना बनाया हो। आपने भी बनाया, मैंने भी बनाया, आपका भी पिटाई हुआ, मेरा भी पिटाई हुआ। तो हम सब लोग इसी तरीके से। तो उस समय मैं सोचता था यार कौन पागल आदमी पढ़ाई बना दिया, इतना लाइफ मुश्किल कर दिया यार, क्या यार, राइट। तो उस समय मैं सोचता था कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, कॉलेज में चला जाऊंगा, तो सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, ड्रेस पहनना नहीं पड़ेगा, लाइफ इजी हो जाएगा। बट कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते जो भी घर में आता था वो सुबह, बेटा आगे बड़े होगे क्या करोगे, व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू बिकम, वो इतना टेंशन दिमाग में डाल दिया यार। उसके बाद में कमाना शुरू किया, सोचा था इतना पैसा आएगा, आया इतना और टेंशन, पूरा लाइफ टेंशन टेंशन टेंशन। हम हमेशा सोचते रहते हैं ये हो जाएगा तो ये इजी हो जाएगा, बट कभी लाइफ इजी होता नहीं है। देयर विल बी ऑलवेज चैलेंजेस इन योर लाइफ। चैलेंज आपको जब तक आप सांस ले रहे हो, हर रूप में आपको कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर मिलेगा। और जो जितना बड़ा है उसका चैलेंज भी उतना बड़ा है। 10,000 रुपये जो कमाता है उसे बेचारे को 2, 4, 5 हज़ार रुपये का चैलेंज है। जो 1 लाख रुपए कमाता है उसे 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 1-2 लाख रुपए का चैलेंज है। जो करोड़ रुपए कमाता है उसे करोड़ों रुपए के चैलेंज है। तो सबकी लाइफ में चैलेंज है। मोदी जी की लाइफ में चैलेंज है, अल्लू अर्जुन की लाइफ में चैलेंज है, विराट कोहली की लाइफ में चैलेंज है, शाहरुख खान की लाइफ में चैलेंज है, सब रतन टाटा की लाइफ में चैलेंज है, सबकी लाइफ में चैलेंज है। देयर इज नथिंग, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पीस हो। सो इफ यू एक्सेप्ट दिस लाइफ इज टफ, देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल। यू अंडरस्टैंड दैट। 2011 में मैं पहली बार लंदन गया। उस समय मई का मंथ था, मई और जून। इट वॉज वेरी हॉट ओवर हियर इन इंडिया, है ना। और दिल्ली ऑल्सो वेरी हॉट, 48 डिग्री, 50 डिग्री। सो फर्स्ट टाइम आई वेंट टू लंदन, आई लैंडेड अप। तो 11 बजे का समय था, तो बड़ा 13 डिग्रीज वॉज द टेम्परेचर। इट वॉज वेरी कूल, वेरी नाइस, वेरी गुड वेदर। सो मैंने अपना ट्रैक सूट डाला एंड आई वॉज वॉकिंग इन अ पार्क। सो मेरे एक फ़ोन ने, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को वीडियो कॉल किया। तो बोला तू कहाँ गर्मी में जैकेट पहन के घूम रहा। मैंने कहा गर्मी नहीं है, मैं लंदन में हूँ। बोला लंदन में, तो मतलब टेम्परेचर क्या है? ऐसे 13 डिग्रीज। सो अगर सपोज करिए कोई पर्सन लंदन में रहता हो, उसने कभी गर्मी देखा नहीं है, वो मई जून में इंडिया में लैंड होता है, हैदराबाद लैंड होता है। हाउ मच इज हैदराबाद इन मई और जून? 50 डिग्री, वेरी हॉट, राइट। सो अगर उसको मालूम नहीं है इतना गर्मी होगा, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसको बहुत प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। बट अगर वो आने से पहले वो रेडी हो जाए कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ या हैदराबाद जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ, बहुत गर्मी होगा, तो वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा एंड बहुत हद तक उसको हैंडल कर पाएगा। ये सर नो। सो बी प्रिपेयर, लाइफ इज टफ, लाइफ विल बी टफ, दैट्स इट। यू अंडरस्टैंड दैट? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। हर चीज़ इस वर्ल्ड में टेम्पररी है। देयर इज नथिंग कॉल्ड परमानेंट। चाहे वो हमारा स्ट्रगल हो या वो हमारा सक्सेस हो, कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाला नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, राइट। एक पर्सन ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी मुझे ऐसा कोई बात बताइए जिससे अगर मैं बहुत टफ टाइम में गुजर रहा हूँ और मुझे कंफर्ट मिल सके। तो गुरुजी ने कहा जितना भी लाइफ में आपका टफ टाइम हो, दिस विल पास ऑन, नथिंग इज परमानेंट। सो नीदर योर फेलियर इज परमानेंट, नीदर योर स्ट्रगल इज परमानेंट, नीदर योर सक्सेस इज परमानेंट। एवरीथिंग विल गो थ्रू, जस्ट कीप मूविंग, ओके। सो keep going, keep focusing, keep working. There is nothing you can do. Now, जब मैं छोटा था तो आई वॉज इन क्लास 2। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हॉस्टल में भेज दिया पढ़ने के लिए। देयर इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन नॉर्थ इंडिया कॉल्ड मसूरी। आई स्टडीड देयर इन अ बोर्डिंग स्कूल एंड बेस्ट एजुकेशन मेरा मदर मेरे को देना चाहता था।
एंड पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, बट आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. आई यूज टू प्ले क्रिकेट. आई रिप्रेजेंटेड माई स्कूल, माई यूनिवर्सिटी, एंड आई वॉज अ डेडिकेटेड स्पोर्ट्समैन. एंड स्पोर्ट्स से मैंने क्या सीखा? स्पोर्ट्स से मैंने सीखा मेहनत करना, हार्डवर्क करना, सुबह 5 बजे उठना, रनिंग करना, मेहनत करना, डिसिप्लिन सीखा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, नेवर गिव अप एटीट्यूड. जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, आप हर रोज़ नहीं जीत सकते. अगर हम कोई मैच खेलते थे संडे को, अगर हम अच्छा नहीं खेले तो वेडनेसडे को हमें एक मौका और मिलता था, सैटरडे हमें एक चांस और मिलता था. मीन्स लाइफ ने मुझे सिखाया दैट यू शुड नेवर गिव इट अप. अगर एक महीना अच्छा नहीं गया, एक मैच अच्छा नहीं गया, देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड चांस. सो ऑलवेज नेवर गिव अप, वर्क हार्ड. एंड द बेस्ट थिंग वॉज, स्कूल में मुझे किताब पढ़ने का आदत लगा. बुक्स पढ़ना शुरू किया, सेल्फ मोटिवेशन बुक्स पढ़ना शुरू किया 6th 7th 8th क्लास में. एंड जब मैं स्कूल में था, मेरे यूनिवर्सिटी में था, कॉलेज में था, तो आई गॉट अ नी इंजरी, जिसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स करियर हैम्पर हो गया. स्पोर्ट्स मेरे को छोड़ना पड़ा. बट वहाँ से जो मैंने सीखा वो मुझे लाइफ में आज तक भी बहुत ज़्यादा काम करता है. एंड एट द सेम टाइम मैंने छोटे जॉब्स किए, बिजनेसेस किए, ऑडियो कैसेट्स का बिजनेस किया. 1996 में अगर आपको गाने सुनने होते थे, देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नो मोबाइल, तो ऑडियो कैसेट चलता था, साइड ए साइड बी. कितने लोगों ने गाना सुना ऑडियो कैसेट पे? गुड. तो मेरा फ्रेंड उसको ले करके शॉप टू शॉप सप्लाई करते थे. ये मैंने काम किया, ट्रेडिशनल बिजनेस किया. उसमें 2 प्रॉब्लम थी. जब मैं ऑर्डर लेने जाता था कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम कब? जब पैसा मांगने जाओ. अब जब पैसा मांगो, 50,000 किसी का पेमेंट लेना है, वो 5,000 आज दे दिया, बोला बाकी कल ले लेना. फिर 10,000 दे देगा, बाकी कल ले लेना. तो छोटा छोटा करके पैसा आके खर्च हो जाता. मेरे को मालूम नहीं, मेरे को एक साथ देना पड़ता पहला. दूसरा, कई बार वो वेट कराता हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स. अपने पैसे के लिए वेट करना इज़ लाइक जैसे मैं उससे कोई लोन मांगने जा रहा हूँ. दैट वॉज अ वेरी बैड फीलिंग. सो आई क्लोज दैट बिजनेस इन one year with lot of losses. So at the age of 21 मैंने जॉब भी कर लिया, बिजनेस भी कर लिया, लॉस भी चला गया, सब कुछ हो गया. एंड आई वॉज वंडरिंग कि अब क्या करूँ. तो एक दिन मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मेरी मदर को फ़ोन किया, और 1997 की ये बात है, और बोला कि इंडिया में एक नया बिजनेस आया है, आप आकर के देखिए, और एक घर का एड्रेस दिया. मेरी मदर वहाँ पर गए एंड एक ड्राइंग रूम में वाइट बोर्ड लगा हुआ है. वहाँ पर एक पर्सन आए, उन्होंने बोला कि ये एक कंपनी है, इंडिया में आने वाली है, आप डेली नीड के प्रोडक्ट यहाँ से लेंगे, आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप कुछ और लोगों को एनरोल करोगे, इसके ऊपर वो जो परचेजिंग करेंगे आपको पैसे आएंगे. एंड उसके बाद में उन्होंने कुछ लोगों की फ़ोटोग्राफ दिखाई जो कि फॉरेनर्स थे, जो इस बिज़नेस को कर रहे थे 5 साल, 10 साल, 15 साल से, और उन्होंने अपनी लाइफ टोटली चेंज कर दी थी. मतलब कोई अपनी जॉब से डबल ट्रिपल सैलरी से ज़्यादा का पेचेक ले रहा था, कोई अपने बिजनेस से ज़्यादा 4 टाइम्स 5 टाइम्स अर्न कर रहा था. बहुत लोग 10-10 साल काम करके रिटायर हो करके दे वर लीडिंग अ वंडरफुल लाइफ. सो ऐसा उन्होंने शो किया. उस टाइम ये कंपनी इंडिया में आने वाली थी, आई नहीं थी, बट द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी गुड. सो प्रिंसिपली वी एग्रीड कि दिस इज़ अ वेरी वेरी फैंटास्टिक बिजनेस. 1997. उसके सेम टाइम, कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, मैंने एक माइंड का कोर्स किया था, अमेरिकन कोर्स था, कॉल्ड सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल. मेरी मदर वहाँ पर गए, तो वहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि जो लोग एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं, दे कैन स्टे, रेस्ट कैन मूव ऑन. तो हम लोग रुक गए. वहाँ मिस्टर बाली आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये एक इंडियन कंपनी है जो पिछले 2 साल से ऑपरेट कर रही है, और अगर आप डेली नीड के प्रोडक्ट यहाँ से लेंगे आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा. एंड एट द सेम टाइम अगर आप नेटवर्क बनाएंगे, आपके नेटवर्क में जो कंजम्पशन होगी उसके ऊपर आपको पैसे आएंगे. और उसके बाद उन्होंने कुछ हमें इंडियन लोगों की तस्वीरें दिखाई जो 30, 40, 50,000 रुपीज़ कमाने शुरू हुए. 1998 30, 40, 50,000 रुपीज़ was a very big amount. So we got excited
हम दूसरे ऑफिस में पहले मदर ने ज्वाइन किया, मदर ने मेरे को ज्वाइन करा दिया. दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री. Right, so 1998 I entered into this industry. 3rd April was the exact date, with a hope कि I will make it big, I will achieve something. मेहनत करनी शुरू करी. चैलेंजेस क्या थे? मेरा सर्कल बहुत लिमिटेड था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, आई वॉज वेरी वेरी शाय. सिर्फ स्पोर्ट्स की जो मेरे दोस्त थे वही मेरे दोस्त थे, उसके अलावा मैं किसी को जानता नहीं था. तो मेरा सर्कल बहुत लिमिटेड था. दूसरा मेरे साथ चैलेंज क्या था? मेरी अपलाइन थी मेरी मदर, तो रिलेटिव्स वर कॉमन. तो मेरी मदर ने क्या किया, अपने सिस्टर को अपनी अलग लाइन में जोड़ दिया, मतलब अपनी एक और फ्रंट लाइन बना दिया. तो उनका जो बेटा हुआ, जो मेरा कज़न ब्रदर हुआ, वो मेरी क्रॉस लाइन हो गया. अपने ब्रदर को उन्होंने अलग लाइन में जोड़ दिया, तो जो मेरा अंकल हुआ वो भी मेरा क्रॉस लाइन हो गया. तो मैं किसी भी रिलेटिव को स्पॉन्सर नहीं कर पाया, बिकॉज माई मदर स्पॉन्सर्ड हिम इन माई different lines, right? So this was the challenge. पहला महीना मैंने बहुत मेहनत करा. रोज मैं 20-25 लोगों को बुलाता था, आप आओ मीटिंग में, आओ मीटिंग में आओ. रोज 20-25 लोग बोलता था हम आएंगे, बट nobody used to come. हार्डली कभी एक आध कोई आ गया. तो पहला महीना का मेरा पेचेक था 155 रुपीज़ आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड. सेकेंड मंथ माई पेचेक वॉज 139 रुपीज़ और मैं घर पे नहीं बैठा था. So second month my paycheck was 139 rupees and बहुत सारा. जब आपका इस टाइप का चेक आता है तो जो आपके दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी बातें बोलते हैं ना. वो ऐसी बातें बोलते हैं जो मैं स्टेज से आपको बोल नहीं सकता. राइट, दे अब्यूज यू, दे डू व्हाटएवर दे कैन डू टू डिस्करेज यू. सो वो सब मैंने भी सुना. एंड उस टाइम क्या होता था, शाम को, तब मेरी मुलाकात सोहैया जी से हुई थी. उस कंपनी में सोहैया जी ने ज्वाइन किया था एज एन एम्प्लॉय, ये ट्रेनिंग मैनेजर थे. शाम को 7 बजे बिजनेस मीटिंग होता था, ख़त्म होते होते इट यूज्ड टू बी 8:30 एंड घर पहुंचते पहुंचते हमें 10 साढ़े 10 बज जाते थे, बिकॉज जो घर से ऑफिस का डिस्टेंस था दैट वाज मोर देन 35 किलोमीटर्स. सो अक्सर फादर पहले पहुंच जाते थे, मैं और मम्मी बाद में जाते थे. फादर को पसंद नहीं था कि हम काम करें, या कोई भी इंडियन सोसाइटी में किसी को भी पसंद नहीं होता मेल पहले आए, घर खोले, ताला खोले, तो वो परेशान होते थे. और उसके बाद वो मम्मी को उल्टा सीधा बोलते थे. तो मैं मेरी मदर को बोलता था कि अभी ये जो भी बोलेंगे, अभी ये जो भी बोलेंगे आप रिएक्ट मत करना, आप रिएक्ट करोगे तो लड़ाई बढ़ जाएगा. मैं तो अपने कमरे में जाके फिर भी सो जाऊंगा. जस्ट बी पेशेंट फॉर 10 minutes, देन एवरीथिंग विल बी फाइन. सो दैट इज़ हाउ वी यूज्ड टू एक दूसरे का हम हौसला बढ़ाते थे, या एक दूसरे को हम सपोर्ट करते थे. आपका आवाज़ नहीं आ रहा. क्या करूँ सर? हाँ, 10 मिनट. ओके ना, फाइन. सो 2-3 महीना बीत गया, मैंने कोई इस इंडस्ट्री से कोई भी पैसा नहीं कमाया. बट मैं एक दिन बहुत फॉर्चुनेट था, मैं एक दिन ऑफिस गया, मुझे पता लगा एक ट्रेनिंग होने वाला है. और ये जो ट्रेनर थे वो एक फॉरेनर ट्रेनर थे जो कि चाइनीज़ अमेरिकन थे. उनकी मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी. मुझे बाद में पता लगा कि इन्होंने 15 साल इस बिज़नेस को दिए हैं. अमेरिका में, चाइना में, हांगकांग में इस बिज़नेस को किया है 15 साल. और ये कंपनी उस समय उनको साल के 1 करोड़ रुपए देती थी. और वो जो ट्रेनिंग थी बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार लाइफ में बात करी, आप कितना अर्न करना चाहते हो, व्हाट इज़ योर ड्रीम. इससे पहले मैंने कॉलेज किया, सब कुछ किया, यूनिवर्सिटी किया, किसी ने मुझसे नहीं पूछा व्हाट इज़ योर ड्रीम. सो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ. और उस समय क्या होता था कि मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे. तो जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, उन्होंने अपने जेब से विजिटिंग कार्ड निकाले. राइट, तो उन्होंने कहा जिसको चाहिए ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरा डायरेक्ट नंबर है, अगर कोई हेल्प चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज ये कार्ड आपको इंस्पायर करेगा लाइफ में कुछ बनने के लिए. तो सब लोग भागे उनका कार्ड लेने के लिए, उनको टच करने के लिए. मैं भी उनमें से एक था. और थोड़े ही टाइम में सारे लोगों ने उनको घेर लिया. ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई विजिटिंग कार्ड नहीं बांट रहे हैं, वो 2-2 हज़ार रुपये का नोट बांट रहे हैं. वहाँ से मुझे विजन मिला कि अगर मैं 15 साल 17 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा
तो मैं भी इतने पैसे कमा सकता हूँ और इतनी इज्जत मिल सकती है, बाकी कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसलिए और किसी काम को करना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है, इसी में अपना करियर बनाना है। ये थॉट मेरे अंदर आया 1998 के अंदर में, एंड एट दैट टाइम आई वाज ओनली 22। शुरू के 3 महीने मैं सबको ऑफिस बुलाता था बिजनेस के लिए, कोई आता नहीं था। तो मुझे समझ में आया कि अगर लोगों को लाने में मुश्किल हो रही है तो बिजनेस को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। तो मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन करना सीख लिया। कैसे सीखा? जैसे मान लीजिए सुबैया जी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, श्रीनिवास प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनका नोट्स मैंने बनाना शुरू कर दिया और वो मैंने याद कर लिया और एक एक आदमी को मैं बिजनेस समझाने लगा। दैट इज 1-on-1। वो मीटिंग करनी शुरू कर दी, बिजनेस मीटिंग्स मैंने करनी शुरू कर दी, यानी खुद से एक्सप्लेन करने लगा और धीरे धीरे मेरी टीम बनने लगी। उनको मैंने सिखाना शुरू कर दिया जो भी मैं सीखता था बिजनेस के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में। और अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था, नवंबर में माय चेक वेंट टू 17,285। 1998। तो विद इन अप्रैल में ज्वाइन किया, तो मतलब लेस देन 9 मंथ्स के अंदर में ये मेरा पे चेक था। फर्स्ट टाइम मैंने 10,000 रुपीज से ऊपर पैसे कमाए। मेरे माइंड सेट में एक ही चीज़ रहती थी ऑल द टाइम, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। 24 आवर्स दिमाग में एक ही चीज़ घूमता था, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। राइट। 1 साल कंप्लीट हुआ, मुझे बेस्ट न्यू प्रेजेंटर का अवार्ड मिला। राइट, अवार्ड सेरेमनी हुआ। अक्टूबर 99 में मैंने मेरा पहला कार लिया, सेंट्रो कार खरीदा। नवंबर 99 में पहला फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया। दिल्ली से हम लोग गए हांगकांग, हांगकांग से चाइना, वियतनाम, हम लोग गए। सुबैया जी भी मेरे ख्याल से उस ट्रिप पे थे, उनको याद होगा। राइट। सो वहाँ पर भी उस समय जो ये दिल्ली टू हांगकांग हमने फ्लाई किया था और वहाँ हम लोग शिप पे थे, क्रूज पे थे, पानी का शिप। वो शिप में रोज 4 घंटे हमें ट्रेनिंग मिलता था। जो हमारे फॉरेनर ट्रेनर थे वो हमें ट्रेनिंग देते थे। तो मैं बहुत शिद्दत से ट्रेनिंग सीखता था, नोट्स बनाता था और उसको लर्न करता था और बहुत मेहनत करता था। वहाँ पर भी मेरा जो हमें एक दिन दिया गया, ये मेरी मदर, मेरे अंकल जो उस ट्रिप पे थे, मेरे फादर, माय पेरेंट्स। राइट। तो ये इस ट्रिप की कुछ फोटोग्राफ्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मिस्टर गौतम वाली, ये 99 का फोटोग्राफ है। उस समय मिस्टर बाली वहाँ पर नेशनल सेल्स सेट होते थे। हमें एक दिन दिया गया हांगकांग में शॉपिंग के लिए। मैं शॉपिंग नहीं गया, मैं पूरा दिन बैठ करके अपने नोट्स को याद किया, रिवाइज किया, क्योंकि शाम को हमारा टेस्ट होना था। क्योंकि मेरे माइंड में एक बात बैठ गई, अगर ये जो बताया है तो सीख लेगा तो ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स आप ले सकते हैं। अगर नहीं सीखेंगे तो ये पहला ट्रिप और शायद लास्ट ट्रिप हो सकता है। तो मैं शॉपिंग नहीं गया, मैं पूरा दिन बैठ करके, सब लोग शॉपिंग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, मैं पूरा दिन बैठ के वहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मुझे 5 दिन पढ़ाया गया। वहाँ फोकस लर्निंग पे था। उसका रिजल्ट क्या हुआ? जनवरी 2000 में, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल भी नहीं हुए, माई चेक क्रॉस्ड 50,000 रुपीज। अप्रैल में 70,000 रुपीज। आज से 25 साल पहले, 24 साल पहले 70,000 रुपीज वॉज अ वेरी बिग इनकम। क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर भी कभी इतना पे नहीं था। तो एट द एज, एट अ वेरी यंग एज, मैंने फॉरेन ट्रिप मैंने अर्न किया। कार मेरे पास अपना पर्सनल था, 70,000 रुपीज का मेरा पे चेक था। आई फेल्ट कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स आई एम द किंग, आई कैन डू एनीथिंग। बट मैंने आपको क्या बोला, लाइफ इजी नहीं होता है, लाइफ टफ होता है। और जब सब कुछ बहुत स्मूथ था, बहुत मजे में था, तब क्या हुआ? अप्रैल 2000 में इंडिया में बाइनरी कंपनी आ गया। बाइनरी समझते हैं? 2 lakhs
सो वो 2 लाख वाला कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में आया और उन्होंने लोगों को उस समय क्या बोला, तो यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है, वीकली पेमेंट आता है, राइट, डॉलर्स में पेमेंट आता है, सब ग्रीड में भागे, प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कि हवा बेचना है, एयर, यू आर सेलिंग एयर, चीटिंग पीपल। सो मेरी टीम में उस समय 14 लीडर्स, फुल टाइम लीडर्स, 14 में से 12 लोग वो बाइनरी कंपनी में चला गया और सिर्फ 2 लोग हम रह गए। अब सारा बिजनेस खत्म, 80-90% बिजनेस खत्म हो गया। एंड उस टाइम आई वेंट थ्रू अ डिप्रेशन एंड वहाँ पर मुझे एक स्टोरी याद आया, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। आई वॉज डिप्रेस एट दैट टाइम। एक बहुत फेमस पेंटर थे, जैसे MF हुसैन साहब का नाम सुना है आपने, फेमस पेंटर थे ना। सो ऐसे ही एक बहुत फेमस पेंटर थे, उन्होंने पेंटिंग किया, एग्जीबिशन लगा, सारा पेंटिंग जल गया। तो वो हंसने लगे, सब लोग सोचा इसका दिमाग खराब हो गया। वो बोला नहीं नहीं घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, जब ये पेंटिंग मैंने 20 साल पहले बनाई थी तब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, अब मैं उससे बेटर बना सकता हूँ और अब मैं और बेटर बनाऊंगा। 2000 में मैंने अपने से सवाल किया, मैं 98 में आया था, मैं किसको लेकर आया था, अकेला ज्वाइन किया था, मैं तो किसी को नहीं लाया ना। जो सीखा यहाँ से सीखा, जो टीम बनाई मैंने बनाई। अगर एक बार बना सकते तो दोबारा भी तो बना सकते, जो गया जाने दो ना यार, उनके ऊपर रोना नहीं है। सो इसके बाद मैं कूल कंफर्टेबल हुआ, मैंने लिस्ट निकाला, नीचे नीचे होम मीटिंग्स करना शुरू किया। जैसे एक्स कोई मेरा डाउनलाइन था वो चला गया, उसको फ़ोन किया, कभी बात नहीं किया, फ़ोन करके बोला मेरा नाम सो एंड सो है, मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ बिजनेस में ग्रो करने के लिए, आप ग्रो करना चाहते हैं। अगर वो यस बोला, उनके पास जाके मिला, चाय पिया, मीटिंग प्लान किया, होम मीटिंग शुरू किया, ऐसे नीचे नीचे फ़ोन से लोगों को पकड़ करके काम करना शुरू किया। और इसी बीच में एक मुझे लेडी मिली जो कि डॉक्टर थी, एंड उनसे मैं जा कर के मिला, उनका बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा था, एंड शी वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एंड उनका जो मेन बिजनेस था दैट वाज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, मणिपुर, इम्फाल। सो मैंने कहा मैम चलिए वहाँ चलते हैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए। शी सेड मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ, आप जाना चाहें तो मैं आई कैन अरेंज। आई सेड ओके, आप अरेंज कर दीजिए। मैं चला गया इतना दूर, फर्स्ट टाइम लाइफ में गया। मुझे वहाँ जाके पता लगा कि वहाँ हिंदी बैन है। ऐसे यार इंडिया में ऐसी कौन सी जगह, वहाँ इतना ज़्यादा उस समय मिलिटेंसी था या इतना ज़्यादा आतंकवाद था, 6 बजे के बाद में वो होटल बंद कर देते थे, 6 बजे तक आपको होटल में आना है, एल्स वो अलाउ नहीं करेंगे आपको आने के लिए। तो बहुत रिस्की जगह था। सो वहाँ पर भी जा कर के मैंने बहुत काम किया, और पूरा टाइम इतना ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ डबल कर ली। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं मेरा डाउनफॉल है, मैं क्या करूँ। ऐसे लगे कितनी मीटिंग करते हो, बोला 2। ऐसे एक काम करो 4 करना शुरू कर दो, अभी 4 करते हो तो 8 करना शुरू कर दो। अगर आपको अपना डाउनफॉल चेंज करना है, स्टार्ट वर्किंग डबल हार्ड, ट्रिपल हार्ड, 4 टाइम्स मोर हार्ड, पुट मोर एफर्ट, पुट मोर वर्क। सो मैंने इस तरीके से काम किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, विद इन 6 महीने के अंदर में मेरा बिजनेस वापस वहीं पहुंच गया जहां पे पहले था। और 2001 में मैंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप के लिए क्वालिफाई किया। सुबैया भाई भी उस ट्रिप पे, आई वेंट टू सिडनी, मैं, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, हम सब लोग सिडनी में गए। 2002 साउथ अफ्रीका, 2003 पेरिस, बिजनेस क्लास विद पेरेंट्स। इनकम 1 लाख को क्रॉस कर गया, 1.5 लाख पहुँच गया। 2004 स्विट्जरलैंड भी किया, सब कुछ किया। अब मुझे फिर से लगा लाइफ बहुत ईजी है या बड़ी मज़े में है, लेकिन लाइफ कभी मज़े में नहीं होती, लाइफ इज़ ऑलवेज टफ। सो 2004 के बाद में कुछ, ये 2001 का फोटोग्राफ है, वाली सर हैं, राइट। ये फॉक्स स्टूडियो है जहाँ पर टाइटैनिक मूवी आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा।
ये मूवी इस स्टूडियो में बना था मेरे पेरेंट्स ने। 2003 में मैंने नया कार लिया, टेविया कार खरीदा। 14-15 लाख रुपए का कार था। उस समय ये इंडस्ट्री की सबसे महंगी कार थी, which I purchased. Right? So this was 30th December 2013. मेरे वाइफ के बगल में मेरा बेटी है, अभी तो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इतनी बड़ी हो गई है। तो ये उस टाइम का टाइम था। सो उस समय मुझे लगा मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। मैं 1.5 लाख रुपया, मीन्स 1.5 लाख रुपीज़ आई वॉज अर्निंग एवरी मंथ। मेरा मदर का भी पेचे कितना था, अच्छा कार था, अच्छा नया घर ले लिया, सब लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल था। लेकिन तभी मेरा कज़न ब्रदर था जो मेरे से 9 महीने छोटा था, उसका डेथ हो गया, उसका मर्डर हो गया अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से मेरी मदर उसमें बिजी हो गई एंड एक पर्सनल ट्रेजेडी घर के अंदर में हुई। एंड 2005 में आते आते बहुत टफ टाइम शुरू हो गया। वो जो कंपनी थी जिसके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था, उसके जो ओनर थे वो एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे। वो इस बिज़नेस को कम समझते थे और उन्होंने कुछ लोग रखे हुए थे अपनी कंपनी को चलाने के लिए। सो उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, बहुत टफ समय आया, हम सबका बिजनेस कम हुआ, इनकम कम हुई, मीटिंग्स, सेमिनार्स, CNTs बंद हो गए, प्रोडक्ट चेंज हुए, बहुत सारे चैलेंजेस आए एंड 2006 में मोर एंड मोर चैलेंजेस आने शुरू हुए। उस समय मैंने देखा जो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर में काम कर रहे थे, दे वर ग्रोइंग। जैसे हमारे यहाँ एग्री 82, एग्री यूमेक या एक्वा जेल ऐसे प्रोडक्ट हैं, तो ऐसे वहाँ पर एक एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट था। सो वो मैंने देखा जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, दे वर ग्रोइंग। सो मैंने वो काम करना, मुझे कोई नॉलेज नहीं था फार्मिंग के बारे में, लेकिन जहाँ आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वहाँ आप करते हैं। सो वो भी मैंने सीखा। बट 2007 तक आते आते बहुत सारे डेब्ट्स आ गए, क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स आ गए। होम लोन मैंने नया घर लिया था, ICICI बैंक से फाइनेंस था, उस समय चेक कम हो गया। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि अगर आप हम लोन हमें ट्रांसफ़र कर दोगे तो हम आपको 5 लाख रुपए का टॉपअप दे देंगे। सो आई ट्रांसफर्ड देम एंड 13 ईयर्स से मेरा EMI बन गया 39 ईयर्स का। तो दे चीटेड। सो वो कोर्ट केस और शुरू हो गया। सो बहुत सारे लाइफ में उस समय चैलेंजेस रहे। स्कोडा जो कार खरीदी थी वो बेचनी पड़ गई, सेकेंड हैंड लांसर कार खरीदनी पड़ी। बहुत सारा स्ट्रेस आया लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस आए। ये सेकेंड हैंड कार मुझे खरीदनी पड़ी और इसका सिर्फ 1.5 लाख रुपीज़ का लोन था। इसका 5500 EMI जाता था, वो भी बाउंस हो गया था। ये बाद में मैंने उसको कैश पे किया, उसका रिसिप्ट है। तो इतना टफ टाइम से मैं 2007 में निकल रहा था। People said I am finished, but मुझे पता था I am not done yet. I am a champion. I need to continue. It does not matter what people tell or think about who you are. What important is आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। लाइफ में आप जब से पैदा होते हो, आप पता नहीं कितनी बार सुनते हो आप गधे हो, आप बेवकूफ़ हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप कभी कुछ नहीं बनोगे। और ये सब हमें हमारे आसपास के लोग बोलते हैं। उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप उसको एक्सेप्ट करो या नहीं करो। ठीक है, ये हमेशा चॉइस आपके पास है। आज के बाद अगर आपको कोई भी बोले आप स्टूपिड हो, आपने दुखी नहीं होना है। अक्सर हम क्या करते हैं, हमें कोई हमारा क्लोज पर्सन बोलता है आप स्टूपिड हो, तो हम दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे पास सिंपल चॉइस है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना। अगर आपको कोई भी बोले यू आर स्टूपिड, आपको सिंपल अपने मन में स्माइल करके बोलना है रिजेक्ट। क्या बोलना है, क्या बोलना है? यस। अगर कोई बोले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको रोना नहीं है, आपको क्या बोलना है? रिजेक्टेड। और अगर आपका अपलाइन बोले आप बहुत आगे जाएगा, आपको बोलना थैंक यू सो मच, एक्सेप्टेड। आपका पेचेक श्रीनिवास की तरह 13 लाख का आएगा, हाँ वेरी गुड, एक्सेप्टेड। ओके, सो पीपल विल टेल यू, योर हस्बैंड विल टेल यू यू आर यूजलेस। दुखी नहीं होना है। दुखी होकर के आप परेशान होगे,
आप परेशान हो गए, परेशान आदमी कभी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता है, अंडरस्टैंड। अब वो बेचारा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ से परेशान है यार, तो इसलिए आपने उसको बोलना है अपने मन में। अगर जोर से नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, मन में तो बोलना रिजेक्टेड। ओके ओके, अब मेरे साथ बोलिए। अगर आपको कोई बोले यू आर यूजलेस, व्हाट विल यू से? Rejected. यस, आप कुछ नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे? Rejected. और यहाँ पर सिर्फ ये बोल रहे हैं भैया बाकी लोग सो रहे हो क्या? सबके लिए फॉर्मूला, केवल श्रीमती के लिए नहीं है। हाँ, अल्लू अर्जुन जागो। ओके, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, Rejected. रिजेक्टेड। ओके फाइन, यू आर द चैंपियन, Accepted. एक्सेप्टेड, यस आई एम। सो डेली आपने अपने को इंस्पायर करना है, आपको कोई इंस्पायर नहीं करेगा। हमारा लाइफ मूवी नहीं है, नोबडी विल कम एंड टेल अस और इंस्पायर अस, हमें खुद इंस्पायर होना है, अंडरस्टैंड। आपको क्या चीज़ इंस्पायर करना चाहिए? आपका 1 लाख रुपया, आपका 2 लाख रुपया, आपका 50,000 रुपया, जो भी आपका गोल है, आई विल अर्न 1 लाख रुपीज, आई विल अर्न 50,000 रुपीज, व्हाटएवर। सो दैट इज हाउ यू प्रोग्राम योर सेल्फ। आपने अपने को प्रोग्राम करना है हर रोज, ठीक है। अगर कोई बोले तुम कुछ नहीं करोगी, तुम बेकार हो, आपने क्या बोलना है? यस, सिंपल, रिजेक्टेड। आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्या बोलना है? Accepted. एक्सेप्टेड, वेरी सिंपल। सो इट इज, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में क्या बोलता है, फर्क ये पड़ता है आप क्या बिलीव करते हो, आप क्या एक्सेप्ट करते हो। जो आप एक्सेप्ट करोगे वो आपका रियलिटी है। दिसंबर 2007 मेरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है सक्सेस बाय चॉइस करके। सो उसमें मैं लिखवाता हूँ फर्स्टली आपका लाइफ आज कैसा है। सो मैंने लिखा उस समय मेरी लाइफ में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस थे, बहुत सारी पैसे की प्रॉब्लम थी, कर्जा था, डेब्ट्स था, लोन्स थे, बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी। लिखा 6 पेज, लिखने के बाद जला दिया, बर्न। जलाने का मतलब क्या है कि ये चीज़ लाइफ से चली गई। फिर लिखा 12 पेज, हाउ माई लाइफ शुड बी, लाइफ कैसे होना चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए, इतना सक्सेस होना चाहिए, ऐसे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। और उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके दिन रात उसको सुनना शुरू किया। वो चीज़ चली गई सबकॉन्शियस माइंड में। जो भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। कभी आप 1 बजे लेट सोए हैं और आपको 5 बजे उठना है, ठीक है, अलार्म से पहले आपका कभी नींद खुला है? कितने लोगों का खुला है अलार्म से पहले नींद, जब आपको सुबह जल्दी उठना होता है? हाउ इट हैपन्स? दैट इज पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको आप किसी को याद कर रहे हैं, आपके पास उनका नंबर नहीं है, वो आपको मिल जाता है, या उनका फ़ोन सामने से आ जाता है, या उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाता है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हुआ है? हाउ? इट इज़ पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जो डालोगे वो मिलेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी आप क्या डालते हैं सबकॉन्शियस माइंड में? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कोई हेल्प नहीं करता है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मैं अकेली हूँ। अरे सब अकेले हैं भैया, अकेले आए हो अकेले जाओगे। कौन किसके साथ आया, क्यों किसी के साथ नहीं। आज के बाद वो स्टोरी चेंज, मेक अ बिग स्टोरी, ओके, नॉट अ चिन्ना स्टोरी। आई एम अलोन, नोबडी हेल्प मी, नोबडी सपोर्ट मी, नोबडी गाइड मी। चिन्ना स्टोरी है, मेक इट अ बिग स्टोरी। बिग स्टोरी इज आई विल अर्न 1 lakh rupees, आई विल अर्न 2 lakh rupees, I will go to foreign trip, I will drive my own car, okay, I will have a great life. So this is the story. So make this story and tell yourself again and again, again and again, again and again.
एंड जो चीज़ आप अपने आप को बोलोगे वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, जो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी वो आपकी रियलिटी बनेगी। कितने लोगों को सक्सेसफुल होना है? बढ़िया, रोज, राइट, हर समय। कभी भी आप किसी को, सपोज सुबह जी मेरा प्रोस्पेक्ट है, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, तो अगर कोई मेरे से पूछे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुबैया को फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने 1 लाख रुपए को फ़ोन कर रहा हूँ। 1 लाख रुपीज, दिस शुड बी द थिंकिंग। अगर मैं उसको प्लान दिखा रहा हूँ, मैं उसको प्लान नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अपने 1 लाख रुपए के लिए काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी काम कर रहे थे उस समय जो टॉपर में वेस्टीज में थे, दे वर अर्निंग 4-5 लाख रुपीज अ मंथ। आई गॉट इंस्पायर्ड एंड आई जॉइंड वेस्टीज इन 2008 February to be precise, right? लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा नहीं होगा, दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा, कुछ और करो पार्ट टाइम। ओके, हमारे यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल इंडिया में फ्री मिलती है, दैट इज कॉल्ड सजेशन, सलाह। हाँ, और ये सलाह कौन देते हैं? जो खुद बेकार जिंदगी में जिन्होंने कुछ नहीं किया। तुझसे नहीं होगा। अरे मियाँ काहे चक्कर में पड़ते हो? अरे कुछ नहीं होने को, सब फालतू बातें करता। वो जो बोल रहा उसके अकाउंट में 50,000 रुपया भी नहीं है, वो मियाँ को ज्ञान दे रहा है। अब मियाँ अगर समझदार है तो उसका बात नहीं सुनेगा। मियाँ अगर बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ आदमी का जो बात सुनता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। करेक्ट है? सो आपको भी बहुत लोग बोलेंगे ए सब बेकार है, ये नहीं होता है, अरे तो कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं, कुछ ही लोग ये करते हैं। अरे कुछ लोग तो करते, तो कुछ लोग में मैं क्यों नहीं? हर साल इंडिया में IAS ऑफिसर बनने के लिए 500-600 सीट निकलती है। कितने लोग अप्लाई करते हैं? 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। अब जो अप्लाई कर रहा है उसका इंस्पिरेशन कौन है? जो सक्सेसफुल है। अगर वो ऐसे लोगों को देखेगा, मैं भी फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया, तो वो बेचारा पेपर देने से पहले ही फेल हो जाएगा। समझ आया आपको? यस। सो आपको अपने माइंड में डालना है मुझे सक्सेसफुल होना है। सो ये चीज़ मेरे माइंड में आई एंड 2008 में मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। अब मुझे पता था सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलेगी, ये एक प्रोसेस है। डेली 30-40 लोगों को इनवाइट करना प्लान दिखाने के लिए। कभी कोई आया नहीं आया वो छोड़ दो, ये प्रोसेस शुरू हो गया दोबारा से। रात होता था तो बहुत खराब लगता था कि रात क्यों हो गया, राइट? क्योंकि रात में किसी को प्लान दिखा सकते नहीं, मजबूरी है, सोना पड़ेगा। मैं वेट करता था कब मॉर्निंग हो। पहले महीने 5 लोगों को ज्वाइन कराया, एक लाइन ब्राउन्स डायरेक्टर चला गया। मेरा फर्स्ट पेचेक आया वेस्टीज से 57,000 रुपीज़। उस समय मैंने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे। मैंने पहला प्रिंसिपल बनाया विद यू विदाउट यू। विद यू विदाउट यू क्या है? मुझे सक्सेसफुल होना है। मैंने सुबैया भाई को प्लान दिखाया, अगर ये साथ में आएंगे काम करेंगे तो हम दोनों लोग एक साथ सक्सेसफुल होंगे विद यू। और अगर ये नहीं आएंगे सर, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल बी सक्सेसफुल विदाउट यू। मैं डिसाइड कर चुका हूँ, आप नहीं करना। समझ आया विद यू विदाउट यू क्या है? आपको लाइफ किसकी है? 1 लाख 2 लाख रुपए किसको चाहिए? ड्रीम कार किसे चाहिए? ड्रीम लाइफ किसे चाहिए? तो काम कौन करेगा? आपके साथ कोई आए या ना आए, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो विद यू, अगर आए वेरी गुड, विद यू, नहीं आए नो प्रॉब्लम, आई विल बी सक्सेसफुल विदाउट यू। गॉट इट? दूसरा फॉर्मूला, I is equal to N into E into B square। I stands for income। इस बिजनेस में आपका इनकम डिपेंड करता है सबसे पहले N पर। N क्या है? नंबर्स। ये बिजनेस नंबर्स का बिजनेस है। इनफैक्ट लाइफ ही हमारी नंबर है। एक स्टूडेंट है, उसके 100 में से 10 नंबर आए, क्या है?
फेल, 0। एक के नंबर आए 98, क्या है? चैंपियन। नंबर्स। सो हमें हर जगह नंबर बढ़ाने हैं। आप जब इस बिजनेस में आते हो, आपके अपलाइन ने आपको बहुत बार बोला होगा लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है, बोला है? ओके। अब एक पर्सन ने लिस्ट बनाया 20 लोगों का, दूसरे ने लिस्ट बनाया 200 लोगों का, कौन सक्सेसफुल होगा? एक ने लिस्ट बनाया 200 का, दूसरे ने लिस्ट बना दिया 2000 का, कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? 2000। एक ने प्लान दिखाया 3 महीने में 2 लोगों को, एक ने प्लान दिखाया 3 महीने में 200 लोगों को, कौन सक्सेसफुल होगा? 200 लोगों का प्लान। एक ने प्लान दिखाया 6 महीने में 2000 लोगों को, एक ने प्लान दिखाया 6 महीने में 20 लोगों को, कौन सक्सेसफुल होगा? 2000। एक की टीम में आप अकेले हो, 300 पीवी अकेले करते हो, आपका पीवी 300। आपकी टीम में 10 लोग हैं जो 300 पीवी करते हैं, 300 पीवी करते हैं, 3000 पीवी, किसका पेचेक ज्यादा होगा? 10 लोग। हाँ जी, 3000। सिंपल सिचुएशन। अनदर चेंज। आपके टीम में 100 लोग हैं, 100 पीपल doing 300 PV. Can you calculate that? How much is that? कितना हुआ? कितना हुआ? 30,000 PV। 30,000 PV अगर एवरेजली देखें आपको 70,000 रुपीज के आसपास का इनकम दे रहे हैं। एक और सिचुएशन, आपके टीम में 1000 लोग 300 PV करते हैं, दैट इज 3 लाख PV। आपका चेक होगा 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया। समझ में आया? नंबर बढ़ाना है। ये बिजनेस में फर्क नहीं पड़ता है कौन कितना इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट डज नॉट काउंट इन दिस बिजनेस। व्हाट काउंट इज हाउ मच इज योर नंबर्स। समझ आया सर? बढ़िया। सर आपके अभी कितने लोग यहाँ पर आज बैठे हैं? आपके? हाँ, हाँ, हाँ? इसके टीम के तेरा पेचेक कितना है? इसका पेचेक कितना है? 7,000। तेरे नंबर गलत है। तेरे 300 लोग यहाँ बैठे ही नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ। 300 लोग नहीं है तेरे यहाँ पे। अगर 300 लोग होते तो तेरा पेचेक 7-8 हज़ार नहीं होता है। 8 आदमी है ना, तो अभी 300 की बोल रहा था। देखा? समझ में आया ना? अगर आपके यहाँ पर 3000 लोग बैठे हों, अब सिंपल सी बात है, ओके भाई, अभी आपका पेचेक कितना है? हैं? कितना? 16? क्या 16? अरे पे आउट कितना है? 16,000 बोलना। 16 लाख, 16 करोड़, 16 रुपए, क्या बोल रहा है? मेरे समझ नहीं आ रहा है यार। 16,000, वेरी गुड। भाई आपका कितने लोग बैठे? 40। श्रीनिवास, आपके कितने लोग बैठे सर? 10,000। 10,000। पे आउट 13 लाख। पे आउट 13 लाख। अच्छा, किसको चाहिए 13 लाख? 10,000 लोग बिठा दो, 13 लाख पहुंच गए। समझ आया? नंबर बढ़ाना है। क्या करना है? नंबर बढ़ाना। नंबर बढ़ाना है। मैं इंटेलिजेंट हूँ, फक यू, नोबडी केयर्स। मैं समझदार हूँ, गो टू हेल्प। नंबर्स बढ़ा, नंबर बढ़ाना है। क्या करना है? नंबर बढ़ाना है। नंबर बढ़ाना है। सो जब लिस्ट बनाओ नंबर बढ़ाओ, जब मीटिंग करो नंबर बढ़ाओ, जब लोग आए नंबर बढ़ाओ। जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतना सक्सेस मिलता जाएगा। समझ आई बात? तो आपकी इनकम डिपेंड करती है पहले एन नंबर्स। समझ आ गई ये बात? अब आती है ई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जिस काम को मैं करूँ उसको अच्छे से करूँ।
अब देखिए, आपके साथ में हिंदी भी थोड़ा रुक रुक के बोलना पड़ता, थोड़ा इंग्लिश मिक्स करना पड़ता, ट्रांसलेटर भी साथ खड़ा। अगर मैं आपसे गांव के लैंग्वेज में बात करूंगा मेरा वाला, तो आप नहीं समझ पाएंगे, या आप मेरे को अगर आपके भाषा में बोलेंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हम जिस काम को करें उसको अच्छे से करें, एफिशिएंटली करें, रिजल्ट ओरिएंटेड करें। देन बी स्क्वायर स्टैंड्स फॉर, आप जिनके साथ भी काम करें उनके पास 2 एवरेज बी का होना बहुत जरूरी है, ब्रेन पावर, बाइंग पावर। समझ आई? अब सीएमडी बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। आपने अपनी टीम में आंध्रा और तेलंगाना के 1000 बैगर भिखारी को ज्वाइन करा दिया, आपका पीवी बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है प्रोडक्ट लेने की। అందరూ కూడా మరి గుండె నిండా నింపుకొని 1 ఇయర్ వల్లే న్యూ పర్సన్స్ అందరూ టార్గెట్ ఏంటి? 1 ఇయర్ 1 ఇయర్ ఒక్కసారి గురుగారికి ఇద్దరికి మరొకసారి మన హృదయపూర్వకంగా ఈ హైదరాబాద్ టీం తరఫున బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ గురుగారు. గురుగారు 1 ఇయర్ బ్యాక్ మనకు ఇదే వెన్యూలోకి వచ్చినారు. అప్పుడు మన లీడర్స్ చాలా మంది చిన్న ఇన్కమ్తో ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ దాదాపు 5 to 10 టైమ్స్ మార్చుకోవడం జరిగింది జస్ట్ 1 ఇయర్లో. ఇంకొక 1 ఇయర్ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఈరోజు మనకు మీటింగ్ ఇంత గ్రాండ్గా సక్సెస్ అయింది అంటే పవర్ ఆఫ్ వెస్టింగ్ అవర్ గాడ్స్. ఈ హాల్లో ఎంతమంది కూర్చున్నారో ఇంకా బయట అంతకు 2 టైమ్స్ బయట ఉన్నారు మన వెస్టింజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. సో రాబోయే రోజుల్లో ఎల్బీ స్టేడియం, సో ఆ స్థాయికి వెస్టింజ్ వెళ్తుంది. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఈరోజు జర లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఏమైనా మీకు అర్థం కాకపోతే, అర్థమైనా వెస్టింజే, అర్థం కాకపోయినా వెస్టింజ్ గుండెల్లో నింపుకొని మీ సక్సెస్ ఈరోజు ఒక స్పెషల్ డే ఏమంటే ఈరోజు సిద్ధార్థ్ గారి బర్త్డే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఒక పని చేయాలి. అందరికీ బర్త్డే సాంగ్ వస్తుందా? బర్త్డే సాంగ్ అంటే మనం ఇంట్లో చెప్తాం హ్యాపీ బర్త్డే టు. ఇప్పుడు అందరూ మనం సిద్ధార్థ్ గారికి ఒక మంచి సాంగ్ అందరూ, ఓకే? రెడీ? 1 2 3. హ్యాపీ బర్త్డే టు యు, హ్యాపీ బర్త్డే టు యు, హ్యాపీ బర్త్డే టు యు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గురుజీ. థ్యాంక్ యూ. మీరందరూ దూరం నుంచి వచ్చి ఉంటారు, ఒక మంచి నాలెడ్జ్ దొరుకుతుంది వచ్చి ఉంటారు. మీరందరికీ సిద్ధార్థ్ గారి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉపయోగం వచ్చింది అనుకుంటారు. ఎందుకంటే ఈ మీటింగ్స్ చూస్తే మనకి విశ్వాసం ఎక్కువ అవుతుంది. అదే విశ్వాసంలో వెళ్ళాలి. సిద్ధార్థ్ గారు చెప్పారు కదా, స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకోవాలి. మనం అందరూ టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి. మనకి డబ్బు ఎంత కావాలి అది చూసుకొని అది మేనేజ్ చేసుకొని పని చేయాలి. కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి. సిద్ధార్థ్ గారు చెప్పారు ఎంత టైం కింద పడిపోయారు. ఒక బాగా రిపోర్ట్ చేశారు, ఏమో జరిగింది, కింద పడిపోయారు. ఎగైన్ లేపారు, ఎగైన్. సో 4 to 5 టైం కింద పడిపోయి ఎగైన్ లేపారు. రెస్పెక్ట్ ఎవరు దొరుకుతుందంటే సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు కదా, ఆడికి కాదు. కింద పడిపోసి లేపుతారు కదా, ఆటలు పెద్దగా. సో అందుకే పడిపోతే లేపాలి. కింద పడిపోతే ఫైనల్ కాదు. ఒక బాడీ ఫెయిలియర్ వస్తే అది ఫైనల్ కాదు. ఎగైన్ లేపాలి, ఎగైన్ చేస్తారు. సో ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ कमिंग. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू एवरीबॉडी. जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा, आप हमेशा याद रखिए, वर्क इज द ग्रेट वे
ऑफ सक्सेस, राइट? आपको क्या चीज महान बनाएगी? आपका काम। अब ये ग्रेट क्यों है? इन्होंने ग्रेट काम किए। श्रीनिवास ग्रेट क्यों है? इन्होंने ग्रेट काम किए। भाई ग्रेट क्यों है? ये ग्रेट काम कर रहे हैं। सो आपने भी अगर ग्रेट बनना है, एक ही चीज है जो आपको सुपर ग्रेट बना सकती है, दैट इज योर कर्मा। अंडरस्टैंड? डू योर कर्मा विद होल हार्ट एंड with efforts. Lord will bless you. Thank you. Thank you, Guru. గట్టిగా claps, గట్టిగా గట్టిగా తెలంగాణ తెలంగాణ గట్టిగా clap. గురువారికి గట్టిగా ఒక్కసారి సార్